Okay, so once again, my name is Aditya Goenka. I have been training students in programming for the past 6 years, visiting various colleges also, and also conducting amazing sessions at my WBUT. So it has been a wonderful experience. And today I have brought a very short workshop on C programming. Now, out of so many participants who have joined the session, some of you might be, in fact, most of you should be aware or a bit familiar with programming. Okay, so I have divided the entire session into two parts. Of course, there will be no separate session, it will be combined in the same session only, but it will be consisting of two things. Initially, I will be taking you over through the basics of C programming just to give you a good refresher. And after that, we will be solving some questions which have come in some competitive exams of technical rounds or some interviews, and we will try to understand. Basically, the whole point is because of the COVID-19 situation, everyone is locked up at home, and that is why online classes becomes imperative for you, because the learning should not stop. So this is our effort to make you understand that online classes can, of course, it cannot substitute the physical classroom, but it is almost equal in terms of the knowledge which you learn. Okay. All right. So I am just starting the session now. I'm sure you can see my screen here. I have downloaded a particular software called CodeBlocks. Now, I'm pretty sure that almost all of you are familiar with this particular compiler, CodeBlocks. And if you are not, I'll just tell you a quick one-liner about it. CodeBlocks is probably the best IDE which you use to write your C programs. Okay. In fact, CodeBlocks also supports some other programming languages also, but that you can definitely Google out and find it for yourself. So we will be using CodeBlocks. It's a very simple tool to download. You can just Google CodeBlocks and the first official link is the thing which you are looking for. Okay. So I won't spend time in downloading this. So you can definitely download it. Or even if you have any other editor, any other IDE like Dev C++, etc. If you are using iOS, then there will be different. So it's fine. Don't worry about that. Just open up any, just fire any compiler and we should be going there. Right? Okay. So now let me just create a new file very quickly and we will just brush up some of the programming concepts and then we will start off the thing. So let me just create a file. Let me hello.c. So obviously we give .c extension for C files. I'm sure you know this. Now, why do we write programs? We write programs to instruct something to the computer because the computer cannot do anything from itself. Okay, so we definitely want the computer to understand our programs and that is the reason why compilers come into picture. हम लोग जो program लिखेंगे वो C, Java, Python, etc. ये सारे programming languages में होगा. But the computer must understand. Computer सिर्फ binary language समझता है, only the machine language. So we have a compiler जो कि ये conversion का task हम लोग के लिए करता है, right? And now if we get on with the C programming, so what is the first thing which we write in any C program is something called a header file. I'm sure you have heard of it. So this stdio.h, why do we write this in every program which we write? हर program चालू करने से पहले ये देना जरूरी होता है. Why? So these are called header files. Header files क्या होता है? देखो, जब C programming language तैयार किया जा रहा था,
तो there were some standard functionalities which are needed in every program. यूजर से इनपुट लेना, यूजर को आउटपुट देना, these are the two basic processes that is present in almost every program, except अगर वो कोई कर्नल लेवल पे बैकग्राउंड पे रन करने वाला प्रोग्राम है, then we might not have this, but in most of the cases the applications which are there, आप कुछ इनपुट देते हो, आपको कुछ आउटपुट मिलता है. So these standard input output functions are clubbed into one library or a header file called stdio.h. ऐसा बहुत सारा .h extensions का header files available है for different purposes. जैसे एक होता है math.h. math.h में क्या होता है? Mathematical functions, सारे के सारे standard mathematical functions, trigonometric functions, everything is there inside it. Logarithms. Okay. So abhi ke liye we are just concerned with the input and output thing. Okay. What next? After this, we write something called a main function. अब ये int क्यों लिखे हैं यहाँ पे? That you will come to know when we will be when we discuss functions. So I'm not sure whether we'll be able to discuss functions today. But स्वागतम clubbed मतलब okay. I saw that emoticon. Cool. You are happy with the word clubbed. Great. So now inside the main function we write all our code. Okay. Abhi the program execution will start from the main function and will end in the main function itself. That is one thing which you need to understand. हाँ, अगर हम लोग कोई डिफरेंट फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे तो प्रोग्राम का लॉजिक जंप करके वहां जाएगा, लेकिन एंड तो मेन में वापस आकर ही होगा. ओके, ग्रेट. नाउ लेट अस राइट yes, Kumar Aditya, tell me. If you have any doubts, tell me. ऐसे ही हाथ उठा दिए, चलो कोई नहीं. Now let us do a very simple program. Why we take main? We take a main function because main is one of the standard functions which is present in almost all programming languages, be it Java, be it C, C++. तो इसमें क्या होता है? It is not a user defined function. Obviously we are defining the function here, but ये जो नाम है main, you cannot change it. So the system is designed in such a way that your program execution, अगर program execute अगर करना है तो वो हमेशा main function को ही ढूंढेगा और main function को ही execute करेगा. Okay. So where should we use int main and where should we use void main? Very good question. Void main also can be used, लेकिन C programming में generally int main ही use करते हैं. इसका reason क्या है? ये जो again I told you, जब functions डिटेल में पढ़ते हैं तो we realize that this int is actually a return type. Return type मतलब function जो value return कर रहा है. तो ये जो system defined system इस function को जब call करेगा तो int main लिखने से क्या होता है? No, both are not same, Susan. Both are not same. int main से क्या होता है? You return a value signifying that the program has executed successfully or the program has not executed successfully. Okay, इसका और डिटेल्स में जब फंक्शंस जब पढ़ते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, अभी सिंस वी आर डिस्कसिंग द बेसिक्स एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट वर्कशॉप, तो मैं एक्चुअली 1 घंटा का वर्कशॉप है, 1 घंटा सिर्फ फंक्शंस पे बिताया जा सकता है, इससे भी ज्यादा. ओके, मेन क्या रिटर्न कर सकता है वैल्यू? मेन डेफिनेटली रिटर्न करता है वैल्यू. मेन अगर आप इंट मेन लिखोगे तो मेन विल 110% रिटर्न अ वैल्यू, और वो रिटर्न किसको करेगा? वो सिस्टम को रिटर्न करेगा, जो कंपाइलिंग सिस्टम इसको कॉल किया है उसको. ठीक है, चलो, आई वोंट अगेन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस. लेट्स डू अ वेरी सिंपल प्रोग्राम टू रिवाइज एवरीथिंग. तो एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं अपने. let us take 2 numbers from the user.
Okay, let us take two numbers from the user and or rather let's do this. Everyone I'm sure knows here, hum turbo c, definitely you can use turbo c, although turbo c is nowadays getting obsolete, but still आप turbo c में 110% program run कर सकते हो. Okay, so now let us do a very simple program. Let us take a principal, rate and time from the user and calculate simple interest फॉर द यूजर. एकदम सिंपल है, फॉर्मूला सबको पता है, अगर नहीं पता तो मतलब इट इज टेरिबल, बट आई एम श्योर यू नो. तो लेट अस सिंपली ट्राई टू डू दैट प्रोग्राम. अब देखो हम लोग को क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया. द प्रॉब्लम विच आई वांट टू सॉल्व, वी आर क्लियर विद इट नाउ. सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम, यू विल हैव टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर. जब तक आप यूजर से प्रिंसिपल, रेट और टाइम लोगे नहीं, आप सिंपल इंटरेस्ट किसका निकालोगे? राइट. सो फर्स्ट उसका हम लोग को अरेंजमेंट करना पड़ेगा. नाउ टू स्टोर डेटा, टू स्टोर नंबर्स और एनी अदर अल्फाबेट, स्ट्रिंग्स, व्हाटएवर, टू स्टोर एनीथिंग, वी नीड सम मेमोरी स्पेस. राइट. कंप्यूटर में math.h यूज कर सकते हो, इसमें इस प्रोग्राम में यूज नहीं होगा, बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो हाँ, if you are using the pow function तो आप कर सकते हो. I'll come to that. So now initially I need to declare some memory locations to store the values, right? तो उसी को ही हम लोग variables बोलते हैं. And I'm sure you know about these things called data types. Data types मतलब those things that specify कि किस टाइप का डेटा यूज हो रहा है. तो यहाँ पर हम लोग को इंटीजर वैल्यूज ही चाहिए. प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों को फॉर द टाइम बीइंग मैं मान लेता हूँ कि इंटीजर ही होगा. ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, और या फिर चलिए हम दोनों चीज इसमें सीख लेते हैं. तो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है p, इंट p बनाते हैं. ये इंट p क्या है? दिस इज अ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द प्रिंसिपल इन आवर प्रोग्राम. और एक और चीज मान लेते हैं कि जो टाइम है, टाइम टेकन, वो भी हम मान लेंगे कि इंटीजर है, तो वो t हो गया. जनरली टाइम टेकन नंबर ऑफ इयर्स इंटीजर में ही होता है, 2 साल 5 साल. एंड प्रिंसिपल भी जनरली इंटीजर ही होता है. कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं 5,000 रुपया और 25 पैसा डिपॉजिट कराया हूं बैंक में. ओके. conayo.h जरूरी नहीं है हेडर फाइल में. conayo.h is necessary if you use turbo c but not in this one. The reason is conayo.h का काम है कि जो आउटपुट स्क्रीन आएगा उसको वो होल्ड करके रखेगा. तो टर्बो सी में अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आउटपुट स्क्रीन तुरंत एक फ्लैश में आके गायब हो जाता है, इसीलिए वहां पे यूज करना पड़ता है. यहाँ पे इट इज नॉट नीडेड. ओके. नाउ int p comma t, and now I need to declare a variable for taking the rate also. So there is something called double. So there are two data types available for decimal numbers. One is called float and one is called double. STDIO is standard input output. Okay. Now we take a float variable. Let's take a float variable for rate. Okay. अब ये जो रेट आया है, ये p है और ये t है, तो ये तो सिर्फ मेमोरी में अभी जगह बना है, पर अभी हमने यूजर से तो कुछ इनपुट नहीं लिया है. राइट. तो सबसे पहले printf स्टेटमेंट से हम यूजर को ये बोलते हैं कि भाई एंटर द p, r and t. So we will be telling the user to give this information to us. When we use void and float, Nokia 5.1 plus, यही नाम आ रहा है आपका. Void and float are totally different things. Void is the return type which you use in a function when there is nothing to be returned. Again I am telling you, functions पे आप मत जाओ. functions के लिए बहुत डिटेल्ड डिस्कशन जरूरी है. आज इस वर्कशॉप में हम लोग सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं. So we'll go step by step. Okay. Hello. Float on the other hand is a simple data type to deal with decimal numbers. तो सर आप मुझे सुन पा रहे हैं?
difference between float and double. Okay, there is a very slight difference between float and double. Float and double both are catering to decimal numbers. double का range ज्यादा होता है, float का range कम होता है. So around 2 to the power 64 minus 1 के करीब double का range होता है, and 2 to the power 32 minus 1 के करीब float का range होता है. That is the only difference, और कोई difference नहीं है. तो आप अपने प्रोग्राम्स में फ्लोट या डबल जो भी आपको यूज करना है यू कैन यूज. ठीक है. printf क्यों यूज करते हैं? printf फंक्शन इज द फंक्शन टू शो समथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन. जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें यूजर को कुछ भी दिखाना अगर होता है तो हम printf फंक्शन यूज करते हैं. आई विल शो यू समथिंग. जैसे सपोज इफ यू राइट suppose I write my name is Aditya Goenka. Okay, मैं अगर ये सारी चीजें हटा भी देता हूँ, suppose if I remove everything from here and let me make it void, okay, just to avoid confusion. And now if we, तो देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है. This is probably the simplest program you can ever write in C. printf statement is used to display anything on the output screen. अब output screen का मतलब क्या है? Let's try to understand. तो suppose अब देखो कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखते हो C में, तो the first step which you have to do is compile the program. compile करने का मतलब you are actually checking whether there are any syntax errors or not in the program. What is stdlib.h? stdlib.h भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हेडर फाइल है जिसमें काफी सारे फंक्शनैलिटीज रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग एंड स्टफ रहता है. तो यू कैन, व्हेन वी विल बी डूइंग फाइल हैंडलिंग, तब maybe I will be able to tell you more about it. Here, so here you use void main. Yes, so I have used void main here because क्योंकि अगर मैं int लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा which might be confusing for you at this point of time. Okay, तो एक बार के लिए मान लो आपकी मतलब ये int और return जो है ये functions जब आएगा तब आप सीखोगे, अभी explain नहीं कर पाऊंगा मैं इसको. No, we cannot use system.out.println because it is not Java. Very good. Java में तो Java का जो system.out.println है exactly वही same चीज ये printf है. Okay. And now to compile the program, code blocks में यहाँ पे छोटा सा एक तो बटन है. I can use this. हाँ, मैं वही दिखा रहा हूँ सुदीप. ये जो बटन है, this button is used to build. तो compile and build are used interchangeably. तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको आपका प्रोग्राम को रन करेगा. नाउ सपोज ये जो सेमीकोलन है अगर आप ये देना भूल गए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इफ यू रन दिस, यहाँ पे देखो एरर दे रहा है. एंड इफ यू वांट टू व्यू द एरर्स, आप यहाँ पे लॉग्स में चल जाओ. व्यू में जाके लॉग्स, यहाँ पे लॉग्स में आप देख सकते हो. देखो क्या दे रहा है आपको, एरर एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन बिफोर रिटर्न. तो कोड ब्लॉक्स इज सच अ गुड थिंग, आपको पूरा एरर अच्छे से बता दिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विच यू हैव डन इन द प्रोग्राम. तो बोल रहा है कि यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है, तो भाई आप सेमीकोलन दे दो, फिर से कंपाइल करो. देखो लिखा हुआ आ गया 0 एरर्स. तो मतलब ओके, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. देखो इन कोड ब्लॉक्स वी क्लिक ऑन द बिल्ड बटन and then it will check your entire program and give you if there are any errors in your program. जैसे suppose आप भूल से यहाँ पे जो syntax है semicolon वो अगर मिस कर दिए हो तो यहाँ पे चेक करोगे तो expected semicolon बता देगा. okay? तो ये हो गया. and now if we compile it तो लिखा हुआ आ रहा है 0 errors. okay? And after compiling, how to execute the program? So देखो there are 2 steps to execute to get the final output of any program. There are 2 steps. Sir, can we write any other number instead of 0? No, we cannot write any other numbers of except 0 now. Okay, don't ask me the reason please, क्योंकि ये फिर से functions से ही link कर रहा है.
रिटर्न का फंक्शन, स्वागतम, अगेन आई एम टेलिंग यू फंक्शंस वाला, फंक्शंस जब मैं कराता हूं तब रिटर्न के बारे में बताऊंगा। अभी रिटर्न का चीज नहीं समझ पाओगे आप लोग, क्योंकि यू हैव नॉट डन प्रोग्रामिंग। आई एम अज्यूमिंग यू हैव नॉट डन प्रोग्रामिंग। I know, Sameer, I know, and I am definitely trying to move ahead. Okay. तो अब ये जो printf हो रहा है, इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यू क्लिक दिस रन बटन, और ये देखो, दिस इज द आउटपुट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, माई नेम इज आदित्य गोयनका, ये कहां से लिखा हुआ आ रहा है? इट इज एग्जैक्टली द थिंग जो कि डबल कोट्स के अंदर यहां पर लिखा हुआ है। ओके, सो नाउ आई एम श्योर यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट इन अ प्रोग्राम। ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू, नहीं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है सुदीप, प्रोग्राम आपको खुद ही लिखना होगा, एरर्स खुद ही सॉल्व करने होंगे। ओके, अब लेट अस कम बैक टू आवर प्रोग्राम, जो कि हमारा प्रोग्राम था टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज अ वेरी दिस इज लाइक अ क्रैश सॉफ्टवेयर, आई मीन दिस इज लाइक अ क्रैश वर्कशॉप। ओके, यहाँ पे आई हैव टू गो फास्ट to cover up some things. ठीक है, so if you are unable to understand a few things, just bear with me. I'll try to solve as many doubts as I can. Okay, तो हमने बोल दिया यूजर को कि एंटर द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, पर अब यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? उसके लिए आई विल हैव टू यूज अ स्कैन एफ फंक्शन। तो ये स्कैन एफ फंक्शन क्या है? दिस स्कैन एफ फंक्शन, जैसे जैसे प्रिंट एफ फंक्शन is used to show something to the output on of the user, scanf function is used to accept something from the user। तो इसमें देखिए सिंटैक्स थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सो आई वांट फुल अटेंशन ऑफ एवरीवन, ओके, वरना यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले I want to enter the principal. Okay, so I'll write something like this here. अब इसका क्या मतलब है? I am telling you. ये परसेंटेज d का क्या मीनिंग है? Yes, ये परसेंटेज d का ये मीनिंग है कि I am trying to accept or take as input guys, I am again telling you, you have to be very careful and alert, क्योंकि अगर मैं सब कुछ रिपीट करने चला जाऊंगा तो फिर एक सच में समीर का बात सही हो जाएगा, एक भी प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव when I am explaining everything. Okay, printf statement is used to show anything to the user on the output screen. Okay, और ये scanf से हमने प्रिंसिपल को, ये परसेंटेज डी का मतलब क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट आई वांट एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो प्रिंसिपल तो इंटीजर ही था, ये इंट में बनाए हम लोग, तो इसीलिए इंटीजर में इसको डाल दी। अब मुझे रेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो रेट भी इंटीजर है, तो इसके लिए फिर से एक और परसेंटेज डी दे देता हूं मैं, और यहां पे I'll write ampersand t, and since हमें रेट भी चाहिए तो रेट के लिए I'll write परसेंटेज f, बिकॉज f क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फ्लोट है, दैट इज वाई। तो ये scanf स्टेटमेंट मैं फिर से समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। दिस scanf स्टेटमेंट इज टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द यूजर ऑफ द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो p का वैल्यू प्रिंसिपल है और ये परसेंटेज डी इसलिए है क्योंकि ये इंटीजर है। t का वैल्यू टाइम परसेंटेज डी इसलिए है क्योंकि ये इंटीजर है, और एम्परसेंट r इज द रेट, जो कि परसेंटेज f है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट है। अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि d क्यों यूज करते हैं इंट के लिए, परसेंटेज i क्यों नहीं यूज करते हैं। इसका आंसर आप खुद ढूंढिए। ओके,
अगर डबल डेटा टाइप होता तो देर इज समथिंग कॉल्ड LF विच इज लॉन्ग फ्लोट, वो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ %f। ओके, ठीक है। अच्छा, आई नीड टू रियली मूव अहेड। डबल के लिए आई टोल्ड यू यू कैन यूज फ्लोट इन प्रिंसिपल, डेफिनेटली यू कैन यूज। ओके, व्हाई आर यू यूजिंग परसेंटेज? ये परसेंटेज एक्चुअली जब हम लोग पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब आप समझोगे इसका मतलब क्या होता है। यू आर स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। ये एड्रेस सिग्निफाई करता है, ये एम्परसेंड एड्रेस सिग्निफाई करता है, ये जो एंड साइन है ये एड्रेस सिग्निफाई करता है। तो इस वेरिएबल का जो एड्रेस है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो कि बॉस यूजर से नंबर लो और इस एड्रेस पे जाके स्टोर कर दो। क्लियर? So now, after we have received the numbers from the user, I have to calculate the simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट भी डेफिनेटली डेसिमल्स में ही आएगा, क्योंकि अगर मेरा रेट डेसिमल्स में है तो वो मल्टीप्लाई PRT बाय 100 फॉर्मूला होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट भी डेसिमल में ही आएगा। तो मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ SI नाम का। आई कैन टेक एनी नेम, मैं कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ। ओके, बट आई एम टेकिंग मीनिंगफुल नेम्स। तो अब मैं लिखूंगा SI इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू R इंटू T बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। एंड C प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल सिंबल्स एग्जैक्टली द सेम वे एज यू यूज इन मैथ्स। ठीक है, तो ये वाला चीज सिंपल है। तो हम लोग आई जस्ट शो यू 1 सेकेंड। आई एम जस्ट ओपनिंग माई marker. Yeah, exactly, it's common for both. So you can use plus, minus, multiply, divide, all these are, so you can see the marking which I am doing, right? So you can actually use all these arithmetic operators exactly in the same way as you use it in maths. ठीक है? There is one more operator called percentage sign. Now this percentage sign is called the modulus operator, mod operator. बट ये परसेंटेज वाला काम जो होता है वो नहीं करता, इसका दूसरा काम है। इसका काम क्या है? टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट 5 and 2 हियर, अगर मैं 5 mod 2 करूं तो आउटपुट विल बी 1। व्हाई? बिकॉज मॉड्यूलस ऑपरेटर फाइंड्स द रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ, जैसे देखो सिंपल है ना, अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 2 से, बच्चे जैसे डिवाइड करते वैसे करते हैं अपने, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर तो 1 आएगा ना। ये रिमाइंडर 1 आया तो उसका भी तो सेम ही होगा ना। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। ओके, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। एंड नाउ आई जस्ट नीड टू, आई हैव कैलकुलेटेड द सिंपल इंटरेस्ट। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करना है, तो आई विल राइट printf। अब देखो, प्रिंट जैसे scanf में परसेंटेज डी दिए थे, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा ना। अब सपोज आप 4 mod 18 करते हो तो क्या आएगा? रिमाइंडर 4 ही आएगा, बिकॉज आप 4 को डिवाइड करोगे 18 से तो क्या आएगा? 18 0 दा 0, रिमाइंडर 4। सिंपल। ओके, नाउ printf में -5 mod 2 क्या होगा?
प्लीज डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस, रिमाइंडर जो भी आता है वही आंसर होगा। ओके अब प्रिंटफ में जैसे स्कैनफ में हमने परसेंटेज डी दिया था, परसेंटेज एफ दिया था, वैसे ही यहां पर भी आई हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर सिंबल। तो परसेंटेज एफ देंगे बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज फ्लोट कॉमा एसआई। यहां पे आई एम नॉट गिविंग दिस सिंबल। तो ये सिंटैक्स का डिफरेंस याद रखना कि स्कैनफ में हमें ये एंड साइन देना पड़ता है टू सिग्निफाई द एड्रेस, बट प्रिंटफ में इट इज नॉट नेसेसरी। ओके गुड। तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं हम लोग। या ऑब्वियसली -1 ही आएगा। तो ये सब क्वेश्चन मत पूछो प्लीज यार। सो नाउ आई एम कंपाइलिंग माय प्रोग्राम। तो कंपाइल करने के बाद लिखा हुआ आ रहा है 0 एरर्स। अब बहुत ध्यान से देखना, व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम व्हाट हैपेंस। सो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, मैं रन पे क्लिक कर रहा हूं। तो जब रन पे क्लिक कर रहा हूं सो इट इज आस्किंग मी, देखो जैसा स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा था, एंटर द PRT, एकदम वैसा का वैसा ही आउटपुट स्क्रीन में आ गया। एंड नाउ दे आर आस्किंग अस टू फिल इन द वैल्यू। तो आपको ये समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर आई राइट समथिंग कॉल्ड /n। ये /n क्या करता है? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। ये बस इट इज लाइक एन एंटर की इन योर कीबोर्ड, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएगा, दैट इज इट्स जॉब। ओके इस /n का यही काम है कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। तो नाउ इफ यू रन द प्रोग्राम अगेन, तो इस तरह से अब देखो प्रोग्राम गेट ch क्यों नहीं यूज किए? Exactly, Swagatam. It is escape sequence. I did not want to burden you all with difficult words. इसीलिए I did not use the word escape sequence. Okay. Get ch क्यों नहीं use किए? Get ch is used to take a character as an input. Okay. Again, I am telling you guys, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको confusion है. तो I will be solving your doubts later on. अभी जो प्रोग्राम अपने कर रहे हैं उसमें अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो डेफिनेटली। ओके अब देखो ये PRT के बाद प्रोग्राम एक बार के लिए रुक गया है और हम लोगों से इनपुट मांग रहा है। तो हम लोग अब इनपुट देते, सपोज प्रिंसिपल मैं दिया 1000 रुपीज, रेट सपोज 5%, ओके, और टाइम सपोज 2 years। तो देखो ये मेरे को आउटपुट दे दिया 100 इज द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो ही आएगा, 5% करेंगे तो यस 2 साल के लिए। ओके सो दिस इज द वे इन विच वी एग्जीक्यूट अ सिंपल प्रोग्राम इन C। ओके राइट नाउ I'll wait for 1 minute. If you have any doubts, ask me. If you have any doubts, ask me. लास्ट में %d %f क्या है बता दीजिए। ओके लास्ट में %d and %f क्या है? I am repeating it again, try to understand. %d and %f, these are actually called descriptors. डिस्क्रिप्टर्स का मतलब वो चीज जो डिस्क्राइब करे उसको ही डिस्क्रिप्टर बोलेंगे। तो ये क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स द डेटा टाइप विच आई वांट टू एक्सेस। जैसे %d इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटीजर, %f इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लोट, so on and so on. Okay, great. Now we will move ahead with a different sir, we use float, that's why the result showed 6 zeros. Yes Debanjan, अगर आप डबल यूज करोगे तो और ज्यादा जीरोस दिखाएंगे, because it is capable of storing a larger number. Okay. What is format specifier? Are you, तो ये जो %d है %f है,
परसेंटेज एफ में डेसिमल्स में कुछ कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होता है वेयर यू कैन एक्चुअली लिमिट द नंबर ऑफ डेसिमल्स व्हिच इट विल शो. ओके, वॉइड मेन के जगह इंट मेन यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, करना ही चाहिए इनफैक्ट. ओके, नाउ we'll do another program. तो मैं इतना पार्ट को मिटा देता हूं. ये रिटर्न का मीनिंग क्या है, अगेन डोंट आस्क मी, बिकॉज अभी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड रौनक. ओके, फंक्शंस अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, सो डोंट आस्क मी दैट क्वेश्चन नाउ. मे बी जब ट्रेनिंग प्रॉपर फुल कोर्स जब होगा तब आपको समझ में आएगा. ओके, yes, Neha, one question which you have asked is fine, that suppose if I write 5/2 तो आंसर क्या आएगा. तो ऐसे तो आंसर 2.5 आता है मैथमेटिकली, लेकिन हमारा प्रोग्रामिंग में सिर्फ 2 ही स्टोर होगा. 2 ये 0.5 जो है डेसिमल के बाद जो भी है वो सारा इरेज हो जाएगा, बिकॉज वी आर डूइंग एन इंटीजर डिवीजन. ये इंटीजर डिवीजन है, इसीलिए 0.5 हट के सिर्फ 2 ही स्टोर होगा. दिस यू शुड रिमेंबर. ऑलराइट, ओके. अब हम लोग एक और प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है. सो द प्रोग्राम इज आई वांट टू, तो 0 आएगा नेहा. इफ इट इज 0.3, 0 विल बी स्टोर्ड. आई वांट टू टेक द सेल्सियस वैल्यू. सेल्सियस का स्पेलिंग CLS सेल्सियस होता है, सेल्सियस वैल्यू, एंड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट वैल्यू. ओके, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9. ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट, टू कन्वर्ट अ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. ठीक है, सो we will be writing a program for this now. Okay, just a second. Right, so now let's write this program. अब इस प्रोग्राम में हमें यूजर से क्या चाहिए, हमें यूजर से चाहिए सेल्सियस वैल्यू. राइट, सेल्सियस का वैल्यू यूजर हमें देगा एंड हम उसका कोरेस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट वैल्यू कैलकुलेट करके दे देंगे. तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट सपोज C, या फिर हम इसको फ्लोट ही लेते हैं बिकॉज टेम्परेचर जनरली डेसिमल में ही होता है. तो फ्लोट C ले लिए. नाउ अब इसको यूजर से इनपुट लेना है, तो हम साथ में 2 वेरिएबल बना देते हैं, एक C और एक F, क्योंकि फ़ारेनहाइट के लिए भी तो चाहिए मुझे. अब मैं यहां लिखता हूं printf एंटर द सेल्सियस वैल्यू. ओके, ये हमने दे दिया कि एंटर द सेल्सियस वैल्यू, और उसके बाद scanf करके हम ले सकते हैं. दिस यू ऑलरेडी नो. ओके, तो %f कॉमा $C, क्योंकि C में मैं चाहता हूं स्टोर करना उसको, मैं C में स्टोर करना चाहता हूं सेल्सियस का वैल्यू, इसीलिए यह संदीप एग्जैक्टली वही प्रोग्राम में लिख रहा हूं. तो C में वैल्यू तो मिल गया, बट नाउ आई वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं ऐसा तो अब नहीं लिख सकता यहाँ पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक. स्टूडेंट्स काफी बार ऐसा कर देते हैं, बट दिस आई कैन नॉट डू दिस. राइट, दिस इज टोटली रॉन्ग. Why? Because समझने का कोशिश करो. We have to make ये जो इक्वल टू साइन है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. ये इक्वल टू साइन का काम क्या है, ये RHS में जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद उसको LHS में ट्रांसफर करता है. मैं फिर कह रहा हूं,
ये जो RHS में जो वैल्यू आता है उसको कैलकुलेट करके LHS में ट्रांसफर करता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि F becomes the subject of the formula, तो F equals to something I, ओके। तो वो तो बहुत इजी है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड ट्राई टू मेक इट हियर, तो ये आ जाएगा 5f minus 160 इज इक्वल टू 9c। तो f कितना आ जाएगा, 9c प्लस 160 होल डिवाइडेड बाय 5, यही आ रहा है। अब इसको हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल्स टू 9 इंटू सी प्लस 160 और पूरे में डिवाइडेड बाय 5 है तो ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने से काफी सुविधा रहेगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कहां पे है। एंड फाइनली f का जो वैल्यू हमें मिल गया इसको प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट f परसेंटेज f कॉमा f, ओके। सो इफ वी रन दिस, इसको कंपाइल करते हैं तो 0 एरर्स कह रहा है। हाँ एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा संदीप, हमने भी यही निकाला है। एंड नाउ इफ वी रन दिस, तो सेल्सियस का वैल्यू, सपोज सेल्सियस का वैल्यू इफ आई गिव 37 इज जनरली इट शुड कम अराउंड 98, जो कि हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इट मींस आवर प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली। Any doubts in this one? Tell me. Any doubts in this program? Tell me. I'll again wait for 1 minute. If you have any doubts in this program, tell me. Good, great. So I can see many of you have understood. That's fine. All right. So now we have around 15 minutes left. Okay. So for those students who had zero programming idea, I am sure you have got some amount of knowledge on how things are working, how programming happens in, and how an actual C program runs in a compiler. Okay, so let us now write another code here. So I'll just remove all these. Now in the chat I just want you to respond. So if now I want to give you some questions to solve, okay? So those who have no idea about C programming, you will not be able to, or you will have some difficulty in solving them, but those who have a little idea about if conditions and stuff, just give me a in, just write in the chat box to make me realize that how many students are actually ready to solve some questions. So if you are having some programming idea, only then write in. Okay, all right. Okay, so we are game, let's do some questions. Okay, so can you see my screen? Can you see my screen? Yes sir. Okay, so Yes sir, yes sir. cool. So now first of all, you can see the question on the screen, right? Question दिख रहा है बोर्ड पे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, so this question is for those who don't know loops, जिसको loops नहीं आता, I am again telling you it's fine, give it a shot,
अगर रॉन्ग आंसर आता है तो भी कोई कुछ हारने को नहीं है, अगर राइट आंसर आता है तो डेफिनेटली वी विल ऑल क्लैप फॉर यू. ओके, सो आई गिव यू टाइम, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस. अब एक चीज मत करना यार, इसको टाइप मत करना कंपाइलर में और आंसर मत निकालना. यूज योर ब्रेन्स टू फाइंड आउट द आंसर. ओके, दैट इज द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट यू टू डू. इसको खुद से दिमाग में सॉल्व करो. सर 5 से कम होगा ये? I'll give you 2 minutes टाइम. जल्दी से ऑप्शन बताओ मुझे, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से. ओके, क्विकली क्विकली. सर बी होगा. ऑप्शन चैट में भेजो प्लीज, प्लीज चैट में रिस्पॉन्ड करो सो दैट others are also motivated to solve it. B, A, B. Okay, so B और A में से many people are telling. ठीक है. Yes sir, B. B. Last 30 seconds to go. Those who are still solving, 30 seconds में दे रहा हूँ, 20 seconds. A. तो मतलब C और D का कोई सीन ही नहीं है, A और B में ही सारा लड़ाई है, राइट? हाँ. चलो लेट्स सी. तो लेट्स, Yes sir. for the moment, let's become compilers, okay, and let's see how actually we will execute this program. तो हम लोग चालू कर रहे हैं प्रोग्राम को. तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, वन सेक. सबसे पहले व्हाट वी आर सीइंग इज, वी आर सीइंग कि इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा है. तो ठीक है, एक वेरिएबल i है, एक वेरिएबल j है. i में वैल्यू है 1, j में वैल्यू है 10. ठीक है. Now this is a do while loop. So those who know do while loops, you will be able to do this. We enter the loop. सबसे पहले कंडीशन चेक हो रहा है i greater than j. तो 1 greater than 10 ट्रू है कि फॉल्स? इट इज फॉल्स. तो फॉल्स है तो इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, कंट्रोल सीधा यहां आ जाएगा. एंड नाउ j माइनस माइनस, तो दिस इज अ पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. अगेन गाइज आई एम टेलिंग यू, जिन लोगों को बेसिक्स नहीं आता है सी प्रोग्रामिंग का, यू डोंट हैव टू पैनिक, यू डोंट हैव टू पैनिक. ओके, ये लास्ट का 10 मिनट का सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, जस्ट टू have an enjoyment and you to give you an exposure of different type of questions. Okay, अब j माइनस माइनस होगा तो पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो j का वैल्यू 9 हो जाएगा. नाउ दिस कंडीशन इज इवेल्युएटेड. तो ये कंडीशन क्या है? प्लस प्लस i. देखो दिस इज प्री इंक्रीमेंट. प्री इंक्रीमेंट का मतलब i का वैल्यू पहले 1 से जाके 2 हो जाएगा. सर टूल बार, अच्छा टूल बार, अरे टूल बार तो मुझे जरूरत पड़ता है बार बार. चलो ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ अभी. ठीक है, तो देखो j का वैल्यू, अब i का वैल्यू प्लस प्लस i होके 2 हो गया. अब ये कंडीशन चेक हो रहा है 2 लेस देन 5, तो दिस विल डेफिनेटली बी ट्रू. तो लूप का कंडीशन ट्रू है, तो लूप फिर से घूमेगा. फिर से घुमा दिए, फिर कंडीशन चेक कर रहा है. अब क्या चेक करेगा? 2 लेस देन 9, सॉरी 2 ग्रेटर देन 9, इट इज स्टिल फॉल्स. फिर यहां आ जाएगा j माइनस माइनस, j बन जाएगा 8. ये वाइल लूप में आया. प्लस प्लस i मतलब i अब बन जाएगा 3. फिर चेक करेगा 3 लेस देन 5 ट्रू है, फिर लूप घुमाएगा. 3 ग्रेटर देन 8 फॉल्स, j माइनस माइनस होके ये बन जाएगा 7. और फिर वाइल लूप का कंडीशन चेक होगा, i विल बिकम 4. 4 लेस देन 5 इज ट्रू, तो फिर लूप घूमेगा. i ग्रेटर देन j इज स्टिल फॉल्स, तो j माइनस माइनस होके, हाँ अब सबको समझ आ गया. तो j विल बिकम 6 एंड i विल बिकम 5. okay? और 5 लेस देन 5 इज फॉल्स. 5 less than 5 is false. That is why
दिस लूप विल एंड, और प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएंगे, और प्रिंट स्टेटमेंट में D फॉर दिल्ली इज द आंसर। I का वैल्यू 5 रहेगा, और प्रगति यही तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का यही तो है, पीपल विल कंफ्यूज यू, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलो बढ़िया, वेरी गुड। let us solve one more question. Let me clear the board. अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यू नो स्विच केस, so this is a very nice question on switch case. Okay, so I'll give you 2 minutes of time, try to solve this. अच्छा, एक चीज, ये जो प्रिंट एफ में ये जो साइन है इसको इग्नोर करना, ठीक है? ये थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है एक्चुअली। ये सी प्लस प्लस के लिए मैंने ये शीट तैयार की थी, तो उसको सी में कन्वर्ट करने में मैं सिर्फ प्रिंट एफ ही लिखा, ये सब को मैं हटाया नहीं। तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फिगर दिस आउट, सॉल्व इट। जीरो आएगा, जीरो, 6 minus 1, 2 minus 1, 1 आएगा, 0, 0, 0, minus 2 करेंगे, 2 आ रहा है, 1, 2, ऑप्शन ए, ओके, करो 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 फटाफट। बी, सी, परवेज तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या ए और बी? दानिश बी, ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बाकी लोग भी आंसर दो। आई एम कंफ्यूज इन ए और बी। हाँ, आई नो दैट, मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ। बी, सो मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग ऑप्शन बी एज द आंसर। ओके, 30 more seconds to go for those who are trying. अच्छा, चलो लेट्स डिस्कस दिस। इसका सॉल्यूशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एकदम एकदम ध्यान से सुनिए। ओके, एकदम ध्यान से सुनिए। ओके, आई हैव वेरिएबल्स x, y, z, 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल को लिख दिए। अब एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करना बंद करो और जस्ट सॉल्यूशन को ध्यान से सुनो। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू अभी डिफाइंड नहीं है, ये लूप जब चालू होगा तब डिफाइन हो जाएगा। तो z अभी 0 है, z लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, अंदर घुसेगा। अब स्विच में क्या आया? 0 आया। तो अब आंसर देना मत करो, अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। सबका आंसर रॉन्ग है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है? सबका आंसर रॉन्ग है। तो अब बहुत ही ध्यान से मेरा सॉल्यूशन को समझने का कोशिश करो। तो अभी z का वैल्यू 0 है, यहां पर x का वैल्यू कितना था? 2 था। तो अभी क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है? अब मुझे बताओ जब 0 आएगा तो कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा? लास्ट वाला केस, राइट? तो लास्ट वाला केस 0 है,
तो printf में 2, तो आउटपुट में सबसे पहले 2 आ गया। इतना तक तो क्लियर है। तो जो लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं उनको समझ में आया क्या मिस्टेक कर रहे हो? 2 तो आएगा ही ना भाई, क्योंकि जब z 0 है तो स्विच केस में जाएगा तो 0 को पकड़ेगा यहाँ पे, तो 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद z प्लस प्लस हो रहा है तो z बिकम्स 1 नाउ, लूप आगे बढ़ेगा ना। उसके बाद फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं। अभी ये जो है ये 0 नहीं है, अब ये 1 बन गया। अब मुझे बोलो कि ये जो 1 है, ये 1 कहां सेटिस्फाई करेगा? केस 2 में तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, इट विल सेटिस्फाई दिस केस। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 1। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी। आफ्टर प्रिंटिंग 1 व्हाट विल हैपन? बहुत ध्यान से सुनो, ओके। आफ्टर प्रिंटिंग 1 यहां पर जनरली ब्रेक स्टेटमेंट अपने देते हैं ना। तो आई एम श्योर किसी किसी के दिमाग में ये भी आया होगा कि सर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ये तो कंपाइलेशन एरर है। बट नो, ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी। हाँ स्वागतम, वेरी गुड। अब जाके तुम पकड़े हो, ये फॉल थ्रू होगा। सिंस ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, so this will undergo something called a fall through। fall through का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसा केस है जो सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद जितना भी केसेस है वो सारा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। सो अब ये 1 जब सेटिस्फाई कर दिया, सिंस देयर इज नो ब्रेक अवेलेबल, केस 0 भी सेटिस्फाई करेगा तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट z का वैल्यू फिर से आगे बढ़ के 2 होगा। फिर से यहां पर अब 2 आया। अब ये केस 0 सेटिस्फाई होगा तो 0 प्रिंट होगा एंड ऑल दीज केसेस विल बी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ फॉल थ्रू, तो 1 और 2 भी आ जाएगा। तो यस सार्थक, फर्स्ट केस में, in our first case it will give output as 2, second case will be 1 2 and third will be 0 1 2। और फिर उसके बाद में तो z का वैल्यू 3 हो जाएगा तो लूप से ही बाहर निकल जाएंगे, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन डी। अरे मुझे लगा कोई ऐसी मजाक में ऑप्शन डी दे देगा क्योंकि सब ए बी सी दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड। अरे सॉरी का क्या है यार इसमें, इट्स फाइन। तो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड इन टुडेज सेशन दैट अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम देबार्गो रहा नहीं है। आई एम सो सॉरी, ओके। बट आई एम श्योर कि आपको समझ में आया है किस तरह से वी आर कंडक्टिंग द सेशंस, ओके। सो ये वाला चीज, this short session was just to give you a quick understanding of how we are going to conduct the sessions। आपको बहुत सारे doubts है मुझे पता है, लेकिन to know more about the concepts और concept clarity जानने के लिए I will personally be conducting a full training on C programming with my WBUT, okay। So definitely those who are interested in learning the concepts deeply and solving a lot of questions, you should, I will be seeing you in the class, okay। So Hello. till then, which is better? Sameer, मेरा personal opinion code blocks है। Yes, in summer training, this is the summer training which we will be conducting। एक full length C programming का training होगा, ठीक है। So I will definitely want to see everyone in class। Till then, keep programming, stay safe, COVID-19 से बच के रहिए एंड पढ़ाई को रोकिए मत, पढ़ाई करते रहिए।
ओके, समर ट्रेनिंग का डिटेल्स आपको माई WBUT के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारा डिटेल्स यू विल बी notified, don't worry about it. Thank you everyone, I'm sure you liked it. This is Aditya Goenka saying bye bye. Thank you guys, bye bye.